कि भाईजान ये मतलब की करना है, मतलब मोदी साहब इतने नाराज हो गए हैं कि वो समझते हैं कि मैं गल ही नहीं करनी, मैं ट्रंप नाल ही नहीं बोलना मैडम। न्यूज़पेपर्स भी सब अब इस बात को उठा रहे हैं। पहले तो जर्मन न्यूज़पेपर ने दिया था, लेकिन अब सभी इस बात को करें। लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से सर ऐसा कोई मैसेज नहीं आया कि जिसमें वो कहें कि जी हमने तो कोई कॉल नहीं किया, खामोशी है। इसमें ये भी एक्सप्लोर करना बनता है पॉइंट कि ट्रंप एकदम से एंटी क्यों हो गया इंडिया के। उसकी एक पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने की है, उसके साथ साथ एनालाइज करते हैं। Just like India and Pakistan, we're going to end up in a nuclear war if I didn't stop them. You know, it's sort of strange. I saw they were fighting. Then I saw 7 jets were shot down. I said, that's not good. That's a lot of jets, you know. $150 million planes were shot down. A lot of them. 7, maybe more than that. They didn't even report the real number. अब क्या बोलो इस आदमी का, ये बेसिकली भूखा है फॉर अ नोबेल पीस प्राइज। क्योंकि अब देखो 2 बार तो प्रेसिडेंट बन चुका, तीसरी बार बन नहीं सकता। अब इसको अपने अवार्ड्स इकट्ठे करने हैं, मेडल्स इकट्ठे करने हैं इसको, ये इसका पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है। साथ ही साथ ये इंडिया को टॉन्ट कर रहा है। यहाँ पे ये कह रहा है 7 जेट्स वर ब्रॉट डाउन, एंड ये पहली बार नहीं बोल रहा है, आई बिलीव 2 या 3 बार ही तो बोल ही चुका है। ये इतने तो पाकिस्तान ने भी नहीं क्लेम किए थे, उन्होंने तो 6 क्लेम किए थे। अब यहीं पे इस आदमी का समझ में नहीं आता, कुछ भी बोल देगा ये, तो इसलिए पकड़ पाना कि क्या सही कह रहा है क्या गलत कह रहा है बहुत ही डिफिकल्ट है। There's a general perception that somehow India needs Russian oil to basically power its domestic economy, but that's just wrong. What's going on is the Russian refiners got in bed with the Indian refiners. Russia offers these refiners a steep discount on the crude, and they partner with the Indian refiners, and then they sell the refined products at premium prices to Africa, Asia, and Europe, and that funds the war machine. What that means is that we wind up having to pay more. Europe has to pay more for defense. The U.S. have to send Ukraine more, and it's because of the Indian profiteering. And think about what India is doing to the United States, right? It steals our jobs. It slows down our growth with their unfair trade practices. Okay, so we take a hit there. And then when it gets into this profiteering scheme with Russia to send oil to basically the Kremlin laundromat for their crude oil, basically it forces U.S. taxpayers to pay more to help Ukraine in the war. India needs to stand up here for the world, for democracy. It's the biggest democracy in the world by the amount of people, and it's basically in bed with the Russians, and that's not conducive to peace. If India tomorrow stopped buying Russian oil, that would go a long way towards getting Putin to the ultimate yes that we need. They don't create a lot of jobs, they just profiteer. So that's wrong, as is the high tariffs and non-tariff barriers and incharges. I mean, look, they can keep doing what they're doing, but Donald Trump is going to keep doing what he's doing, and that's going to mean the high tariffs to stop them from selling Russian oil, buying Russian oil, and high tariffs to get their trade barriers down. मैडम इंडिया चाइना ताल्लुकात ठीक हो गए? सब बेहतर है, ठीक तो नहीं हुए, ठीक तो नहीं हो सकते रातों मतलब रात। इंडिया 20 साल अमेरिका से यारियां कर करके तो अब वो कह रहे हैं कि रशिया से तेल ना खरीदो क्योंकि तुम लोग जो है वो यूक्रेन को बंदे मरवाते हो इससे। ये अमेरिकन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं आज भी उसको सुन रहा था, उनका जो ट्रेड मिनिस्टर है वो तो सीधा सीधा मैडम पड़ गया। उसने कहा भाई बंदे मरवा रहे हो तुम लोग, ये इंडियन, ये मोदी साहब जो है उनकी ये वो है तुम बंदे मरवा रहे हो, बंद करो ये। तो आपको लगता है कि
इंडिया को अमेरिका के साथ बैठ जाना चाहिए और मामलात को ठीक कर लेना चाहिए, ना कि इंडियंस का नुकसान होगा। देखें, आम आदमी का नुकसान होता है, लीडरों का क्या नुकसान होना है यार। जब फॉर एग्जांपल वो कहती है, क्या नाम है, जो वॉलमार्ट कहेगा या टारगेट कहेगा या बाकी अदारे कहेंगे जी हमें ऑर्डर नहीं लेने, इंडिया से 50% टैरिफ है, तो फैक्ट्रियों के ऑर्डर तो इंडिया में बंद होंगे ना। तो जब ऑर्डर बंद होंगे तो वो जो लोग बना रहे थे, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व थे, उनका रोजगार जाएगा ना। तो सरकार का क्या जाता है, सरकार का तो कुछ नहीं जाता। तो यहाँ पे इंडियन लीडरशिप को बैठ जाना चाहिए। अगले दिन वो जयशंकर ने भी तड़ी लगा दी, उसने कहा मैं तेल नहीं लूंगा आपसे, जाओ नहीं तेल लेना तो ना लो। आपको क्या लगता है इंडिया में ये गुस्सा क्यों है? क्या इंडिया ये महसूस करता है दैट इंडिया हैज बीन बीट्रेड, और ये इंडिया का एक तरीकाकार है कि हमने अमेरिका को बुलिंग नहीं करने देनी? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट मैडम? ये रशिया का सबसे बड़ा बायर बन गया चाइना, सेकंड सबसे बड़ा बायर बना इंडिया। ये बात तो जयशंकर भी बता चुके हैं कि इंडिया ने यूएसए से बात करके ही इन लोग से इतना सारा क्रूड ऑयल खरीदा। चाइना को वो कुछ ज्यादा कह नहीं सकता, चाइना के साथ तो इसको अच्छे टाइज इनफैक्ट मेंटेन करके ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर चाइना ने जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो मैग्नेट्स वगैरह वो बनाते हैं, यूएस को भेजना बंद कर दिए तो यूएस में ना तो ईवीज बन पाएंगी, ना तो वहां पे जो F-35 बनाते हैं वो बन पाएंगे। कितनी सारी जो इनकी प्रोडक्शन है वो रुक जाएगी सिर्फ उस रेयर अर्थ की वजह से। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द डिफेंस प्रोडक्शन रुक जाएगी, क्योंकि जितनी भी मिसाइल्स भी बनती है ना, उनमें भी ये सब मैग्नेट्स वगैरह यूज होते हैं। तो चाइना के पास तो है बहुत बड़ी लेवल। अमेरिकन गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, बल्कि डोनाल्ड ट्रम्प को लेकर जो है वो एक तरह के डिसीजन जो है वो लिए जा रहे हैं भारत में, और ऐसा होना चाहिए। हर एक को कहीं ना कहीं जाके, सर टाइमिंग्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी भी मोदी जी की और ट्रम्प की बात नहीं होगी, लेकिन इस वक्त शायद उनको ये लग रहा होगा कि अभी कुछ अरसे बात ना करना बेहतर होता है। कई बार होता है आपके साथ, कई लोग जो होते हैं वैसे होते हैं जिनके साथ आप थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेते हैं, अगर वो आपके ऊपर जबरदस्ती अपनी चीजें आपके सर लगा रहे हो। तो वही मेरा ख्याल है कि इस वक्त भारत कर रहा है कि वो एक तरफ से उन्हें ये मैसेज भी दे रहा है कि जी हम तो रशिया के साथ भी बिजनेस करेंगे, हम अपनी मर्जी से ऑयल भी लेंगे या कुछ भी करेंगे, और चाइना से भी बातचीत शुरू कर दी है, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका को थोड़ा सा डिस्टेंस पे कर दिया है। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई परमानेंटली हो गया है और ये कभी भी बात नहीं करेंगे, और जहां तक उनकी पब्लिक का नुकसान है तो वो थोड़ा नुकसान उठाना पड़ता है कभी कभी। जैसे कहते हैं ना कि नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए। तो शायद वो यही सोच रहे हैं मोदी जी कि अगर अभी फौरी तौर पे बात कर ली तो शायद भारत का नुकसान ज्यादा होगा। लेकिन अगर थोड़ा ट्रम्प को ये समझ आ जाए कि भारत को एक तरह से बहुत छोटी कंट्री या उस तरह से ना लें कि जी ठीक है एशिया में है क्या कर लेंगे, और इस किस्म की चीजें, जो क्योंकि अमेरिका की आदत है, वो हर एक को चाहता है कि उसके अंडर है। पाकिस्तान को भी उन्होंने कहा कि जी आप जो है वो ईरान के साथ आप पाइपलाइन पे काम नहीं कर सकते, सैंक्शंस लगी हुई है, ये है वो है, तो उस पर पाकिस्तान रुक गया। लेकिन दूसरी तरफ चाबहार पोर्ट पे ईरान के साथ भारत काम कर रहा है, सैंक्शन किसी की परवाह नहीं कर रहे। तो सर वो अपनी अपनी जगह पे हर एक की एक पोजीशन होती है। अगर कोई कमजोर है इकोनॉमी वाइज या किसी और वजह से, गवर्नमेंट के अंदर इतना दम नहीं है कि वो अमेरिका को जवाब दे सके, तो फिर ये होता है। अदरवाइज आपने देख लिया कि किस तरह से भारत ने जवाब दिया, और उसके बाद ना तो उनके कोई, उन्होंने वर्ल्ड बैंक जाना है, ना उन्होंने IMF जाना है, ना कोई इस तरह का काम है कि उन्हें फंड चाहिए अमेरिका से कि वो डरें। तो इस वक्त मेरा ख्याल है ये पूरे रीजन के लिए अच्छा है, सिर्फ भारत के लिए नहीं। To a very terrific man, Modi of India. And they say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on Trump. फिर से वो बात हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, ये क्या बात हो गई? कॉन्फ्लिक्ट जो भी चालू हुई है, ऑफ कोर्स वी नो फॉर अ फैक्ट कि वो 1947 के बाद चालू हुई है। कुछ भी आके बोल देते हैं ये, क्योंकि ये बताना चाहता है कि इतनी पुरानी जंग थी जो मैंने रुकवा दी, तो मुझे लाओ नोबेल पीस प्राइज लाओ, ये कहना चाह रहा है ये। But I said, what's going on? I do think India is the world's largest democracy. U.S. is the world's largest economy. I think at the end of the day, we will come together. I think a lot of it by the Indians has been performative. But I will tell you, Maria, I've said this all along during the tariff negotiations. The U.S. is the deficit country. When there is a schism in trade relations, the deficit country is at an advantage. It's the surplus country that should worry. So the Indians are selling to us. They have very high tariffs, and we have a very large deficit with them. We could use a more fulsome
the assist from our European partners here as President Trump is trying to end this war in Ukraine that never would have started if he'd been president. And our European allies need to step up. I don't see them threatening the tariffs on the Indians. And as a matter of fact, they're the ones buying the refined products that's made from the Russian oil.